Welcome to Canongia study material. Today topic asterisk books the 14th of November 2025 top current affairs news GK in Hindi and English asterisk and newspaper analysis. Asterisk 1. भारत और सूडान के बीच आयोजित सशक्तिकरण समारोह किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए था? A. Education. B. Peace building. C. Technology development. D. Agricultural research. Asterisk white heavy check mark answer. B. Peace building asterisk. Asterisk explanation asterisk. यह समारोह वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति स्थापना प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। The ceremony aims to strengthen regional and global peace-building efforts. Asterisk 2. NSUDS संस्था किस विषय में 3 दिवसीय हिमालयन कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है? Asterisk NSUDS is organizing a 3-day Himalayan conclave on which theme? A. Agriculture development. B. हिमालयी सतत विकास बटा हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। C. The water management. D. The wildlife conservation. Asterisk white heavy check mark answer. B. हिमालयी सतत विकास बटा हिमालयन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Asterisk explanation asterisk. NSUDS संस्था हिमालयी क्षेत्र की स्थिरता और विकास पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित कर रही है। NSUDS is conducting the conclave focused on sustainable development of the Himalayan region. Asterisk 3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति में भारत को सदस्य नियुक्त किया गया? Asterisk India has been appointed to which UN Security Council committee? A. आतंकवाद विरोधी समिति बटा काउंटर टेररिज्म कमेटी। B. शांति निर्माण आयोग बटा पीस बिल्डिंग कमीशन। C. Sanctions committee. D. मानवाधिकार समिति बटा ह्यूमन राइट्स कमेटी। Asterisk white heavy check mark answer. C. Sanctions committee asterisk. Asterisk explanation asterisk. भारत को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति सैंक्शंस कमेटी में नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। India has been appointed as a member to the UN Sanctions Committee. Asterisk 4. भारत में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया? Asterisk which city hosted the inauguration of the 13th International Tourism Festival in India? A. Jaipur. B. Lucknow. C. Raipur. D. Delhi. Asterisk white heavy check mark answer. C. Raipur asterisk. Asterisk explanation asterisk. 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रारंभ किया गया। The 13th International Tourism Festival began in Raipur, Chhattisgarh. Asterisk 5. सूडान भारत कूटनीतिक सशक्तिकरण समारोह का उद्घाटन किस उद्देश्य से किया गया? Asterisk what was the purpose of inaugurating the Sudan, India diplomatic empowerment ceremony?
A. Trade expansion. B. Global peace. C. Defense cooperation. D. सांस्कृतिक आदान प्रदान बटा कल्चरल एक्सचेंज। Asterisk white heavy check mark answer. B. Global peace asterisk. Asterisk explanation asterisk. यह समारोह वैश्विक शांति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। The ceremony was organized to promote global peace and cooperation. Asterisk 6. विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? Asterisk World Pneumonia Day is observed on A. 10 or the 10th of November. B. 11th the 11th of November. C. 12 or the 12th of November. D. 14 or the 14th of November. Asterisk white heavy check mark answer. C. 12 or 12 November asterisk. Asterisk explanation asterisk. हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। World Pneumonia Day is observed on the 12th of November. Asterisk 7. केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई ऋण गारंटी योजना किसके लिए है? Asterisk the new loan guarantee scheme approved by the central government is meant for whom? A. The farmers. B. Exporters. C. Startups. D. महिला उद्यमियों के लिए बटा विमेन एंटरप्रेन्योर्स। Asterisk white heavy check mark answer. B. Exporters asterisk. Asterisk explanation asterisk. सरकार ने निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी। The government approved a new loan guarantee scheme to support exporters. Asterisk 8. पिछले दशक में भारत ने कोविड-19 मामलों में कितनी कमी दर्ज की? Asterisk by what percentage has India recorded a decline in COVID-19 cases over the past decade? A. 10%. B. 15%. C. 21%. D. 30%. Asterisk white heavy check mark answer. C. 21% asterisk. Asterisk explanation asterisk. भारत ने कोविड-19 मामलों में तेज गिरावट के साथ 21% कमी दर्ज की। India recorded a significant 21% reduction in COVID-19 cases. Asterisk 9. CSIR और इसरो द्वारा भारत के मानचित्रण सुधार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया? Asterisk what major step has CSIR and ISRO taken to improve India's mapping system? A. राष्ट्रीय स्तर पर GIS डेटा यूनिट स्थापित की। B. नई उपग्रह तस्वीरें जारी की गईं। C. मानचित्रण संयुक्त मिशन शुरू किया। D. डेटा साझाकरण समझौता हस्ताक्षरित किया। Asterisk white heavy check mark answer. D. डेटा साझाकरण समझौता हस्ताक्षरित किया। Asterisk explanation asterisk. CSIR और इसरो ने मानचित्रण सुधार के लिए डेटा साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
CSIR and ISRO signed a data sharing agreement to enhance mapping accuracy. Asterisk 10. राष्ट्रीय महिला विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई? Asterisk, what is the purpose of starting the National Women's Science Festival? A. महिला वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना बटा ट्रेनिंग विमेन साइंटिस्ट्स। B. महिला नवाचार को बढ़ावा देना बटा प्रोमोटिंग विमेन इनोवेशन। C. महिला उद्यमिता विकास बटा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। D. विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना बटा प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन साइंस। Asterisk, white heavy check mark answer. D. विज्ञान में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना बटा प्रोमोटिंग जेंडर इक्वालिटी इन साइंस। Asterisk explanation asterisk. यह महोत्सव महिलाओं की विज्ञान क्षेत्र में भागीदारी और समानता को प्रोत्साहित करता है। The festival promotes gender equality and participation of women in science. सुबह की देश राज्यों से बड़ी खबरें। 14 नवंबर शुक्रवार। नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, किसे चुनेगी बिहार की जनता? आज हो जाएगा साफ, अब से थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 13 नवंबर 2025 को टीबी के मामले में आई कमी की सराहना की। भारत में 2015 के बाद से टीबी के मामले में तेजी से कमी आई है। टीबी मामलों में कमी वैश्विक दर से दोगुनी है। पीएम मोदी ने इसका श्रेय उपचार कवरेज के बढ़ते दायरे को दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी के मामलों में बड़ी कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल सामने आने वाले नए मामलों में 21% की कमी हुई है। 3 ऐसी सजा देंगे कि दुनिया देखेगी। दिल्ली धमाके पर अमित शाह ने दी चेतावनी, और इससे भविष्य में कोई व्यक्ति हमारे देश में इस तरह के हमले की हिम्मत न कर सके। 4 एनडीए जीता तो दिखेगा 2047 के विकसित बिहार का प्लान, महागठबंधन जीता तो बड़ी लकीर खींचने की चुनौती। 5 बिहार विधानसभा चुनाव के तहत राज्य की सभी 243 सीटों के अलावा उपचुनाव जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डंपा और ओडिशा के नुआपाड़ा सीट पर हुए। सभी सीटों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 6 बिहार मोकामा वाले अनंत सिंह के आवास पर 2 लाख रसगुल्ले तैयार, चुनाव रिजल्ट से पहले जश्न के इंतजाम। 7 बिहार में नेपाल जैसा नजारा दिखेगा मतगणना से पहले, ऐसा कहने पर लालू की पार्टी के एमएलसी पर केस। 8 लाल किले ब्लास्ट के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।
इसी बीच दिल्ली पुलिस ने यात्रियों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी की है। सुरक्षा जांच में बढ़ोतरी के चलते अब रेलवे, मेट्रो और एयरपोर्ट पर यात्रियों को समय से पहले पहुंचना होगा। नौ दिल्ली कार धमाके के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर गिरी गाज, रद्द हुई सदस्यता। 10 शीत सत्र से पहले भाजपा को मिल सकता है नया अध्यक्ष, अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना। 11 पुणे में 25 गाड़ियां टकराईं, 9 लोगों की मौत, ट्रकों के बीच दबी कार में आग लगी, कंटेनर भी जला, ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा। 12 भारत G20 में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा, मूडीज का अनुमान 2027 तक 6.5% की ग्रोथ से बढ़ेगी इकोनॉमी, अमेरिकी टैरिफ का असर नहीं। 13 उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, हिमाचल और कश्मीर में जमने लगी धरती, राजस्थान बंगाल में भी पारा सामान्य से नीचे। 14 एंड वर्सेस सा पहला टेस्ट आज से, कोलकाता में 6 साल बाद खेलेगा भारत, शुभमन 2025 में 1000 टेस्ट रन के करीब। 15-14 लाख अमेरिकियों को 43 दिन बाद सैलरी मिलेगी, सबसे लंबा शटडाउन खत्म, ट्रंप और विपक्ष में हेल्थ सब्सिडी पर सहमति नहीं। जय श्री राम। शुक्रवार 14 नवंबर 2025 के मुख्य समाचार। बाबरी का बदला लेना चाहते थे आतंकी। 32 कारों से थी देश को दहलाने की साजिश, दिल्ली ब्लास्ट इसी का था हिस्सा। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द, वेबसाइट से नाम और लोगो हटाने के आदेश। बुर्का पसंद नहीं था, विदेश जाने के सपने देखती थी। आतंकी नेटवर्क से जुड़ी डॉक्टर शाहीन पर पूर्व पति जफर का खुलासा। दोषियों को ऐसी सजा देंगे जो दुनिया के लिए मिसाल बनेगी, दिल्ली ब्लास्ट पर बोले अमित शाह। पुणे में भयावह एक्सीडेंट, 2 ट्रकों के आपस में टकराने के बाद लगी आग, 8 लोग जिंदा जले। धांधली हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा। बिहार चुनाव के रिजल्ट से पहले आरजेडी नेता की चेतावनी। बीआईएचआर इलेक्शन 2025, बिहार में जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे प्रत्याशी, विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध। दिल्ली के महिपालपुर ब्लास्ट की अफवाह, असल में डीटीसी बस का फटा था टायर। आसिम मुनीर को पाक पीएम और राष्ट्रपति से मिली ज्यादा ताकत। परमाणु हथियार, तीनों सेनाओं का मिला कंट्रोल, संसद में बिल पास। आरईडी फोर्ट ब्लास्ट, कश्मीर में 250 ठिकानों पर छापा, 3 सरकारी कर्मी और 20 आतंकी मददगारों समेत 45 हिरासत में। बीबीसी अपॉलॉजी टू ट्रंप, बीबीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांगी माफी, मानहानि के आरोप को किया खारिज। राजस्थान में शीतलहर, 17 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान, दिल्ली हरियाणा में हवा जहरीली, AQI 400 पार, सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ मास्क काफी नहीं। बीआईजी न्यूज, पंजाब के आबादी वाले क्षेत्र में होना था अटैक, 10 आतंकी गिरफ्तार, डीजीपी ने खोले कई राज।
मूडीज ने 2025 में भारत की वृद्धि दर 7%, 2026 में 6.5% रहने का लगाया अनुमान। बिहार रिजल्ट से पहले तकरार वाले बयानों की भरमार, पुलिस फोर्स भी कमर कसकर तैयार। सुप्रीम कोर्ट में सर के खिलाफ अर्जियों पर आज सुनवाई। हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहे, बहुत आराम से चुनाव जीतेंगे, तेजस्वी। आरईडी फोर्ट ब्लास्ट, लोगों से कम मिलता था दिल्ली को दहलाने वाला उमर, घर पर ही पढ़ता था पांचों वक्त की नमाज। RUSSIA, रूसी लड़ाकू विमान Su-30 दुर्घटनाग्रस्त, प्रशिक्षण के दौरान फिनलैंड सीमा के पास क्रैश, 2 पायलटों की मौत। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, सुप्रभात। जय हो। Asterisk, please hit like beating heart and share asterisk.